Hello and welcome to the Ria Rhymer. Today we are going to start differentiation and integration. First we are going to do differentiation. It will help you both in 1D and also in 2D. So let's start. Differentiation is a mathematical tool to find the rate of change of one quantity. If x depends on t, the rate of change of x with respect to t will be dx and dt. Okay, it can be like x depends on t, not only x, it can be like y depends on t or y depends on x. So you have to take it otherwise also. So next thing is results. So we are going to do results now. This is the basic part that we are going to start. All the questions will be based on them only. If x is constant, then dx on dt will be equal to 0 if x is constant. Okay, so next is constant means actually like if x is equal to 4, if x is equal to 5 or it is equal to 6, anything, it can be anything. अब है x is equal to t raised to power n. Here for example x is equal to t square, then dx by dt is equal to n into t n minus 1. This is in the raised to power. Okay, so n which we are taking is the raised to power, like here we will be taking 2 as it is the raised to power to t. Okay, so the third is if x is equal to ctn, example x is equal to 2 into t square. Here c is constant. पहले ही बता दिया है कि अगर constant आता है बीच में तो उसको यहाँ पर ये लेते हैं, पर ये वाला जो constant है यहाँ पर ये अलग है. इसको क्या करना है, हमने सीधा c से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि यहाँ पर x constant नहीं है, यहाँ पर अलग से constant की वैल्यू दी हुई है. So it will be x divided by dt is equal to c is the constant, into n into t n square, n minus 1. So this is the same we are copying, only the c will be different here. The next and the last is the rule for addition and subtraction. अब x is equal to v plus minus u. So here plus minus इसलिए रखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. तो इसमें क्या करेंगे, dx by dt will be equal to dv by dt plus minus dv over dt. So you will take it anyways. प्लस माइनस यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा. सो द नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चंस में आते होते हैं तो इसमें इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी है क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है क्या है ये. तो कांस्टेंट है, जैसे कि एग्जांपल हो गया 2 4. ये आगे जो क्वेश्चन आने वाला है इसका एग्जांपल है, तो वहाँ पर कांस्टेंट को 0 लिया गया है. इसको आप आगे जाके नोट करना, मैंने इसलिए ये चीज़ पहले बता दी है क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, पहले से ही आपको ये समझ में आ जाए. अब मान लो t की जो रेस टू पावर है वो 0 है तो t 1 हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट इज वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नाउ. फॉर क्वेश्चन 1 इज इफ x इज इक्वल टू t स्क्वायर, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 seconds. देन dx by dt will be equal to normal formula we are taking. If x is equal to t square, then dx by dt will be equal to n into t n minus 1. This is the formula we have applied here. Here you can see the same formula we are applying. Then as this is 2 over here, so we are putting 2 over here. 2 into d 2 minus 1. d की वैल्यू हमें यहाँ पर t दी गई है, t जो है यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 2 डाल देंगे. 2 into 2 raised to power 1. 1 इसलिए आया है क्योंकि 2 minus 1 is equal to 1. So the answer is 4 meter per second. Okay, so the next question is, ऐसे क्वेश्चंस वैसे पेपर में ज़्यादा आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड dx by dt. इसके 5 पार्ट्स हैं. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. दिस इज x t 1/2 का इट विल बी इक्वल टू dx by dt. 1/2 आप कैसे ले सकते हो, जैसे 1/2 है, ये तो चीज़ नॉर्मल ले जाएंगी. अगर -1/2 होता तो आप क्या करते, 1/t ले लेते और यहाँ पर 1/2 लिख लेते. दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग. इफ इट इज गिवन दिस, अगर ये है तो नॉर्मल सॉल्व ही होएगा. तो उसमें क्या होता है, dx by dt इज इक्वल टू, वही नॉर्मल फॉर्मूला लग रहा है,
यहाँ पर आ जाएगा n की जगह है 1/2 इंटू टी 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 बाई टी माइनस 1/2 रेज टू पावर। सो इसमें अगर आपको आगे भी इसको लिखना है तो आप इसको आगे कैसे कर सकते हो 1/2 1 t 1/2 you can write it this way also. So the next is x is equal to 3t square. Here 3 is the constant that we were talking about before. So this will be equal to, I have written the formula here, that's why again. So this is c into n into t n minus 1. c is 3 into n is equal to 2 into t 2 minus 1 is equal to 6t. So this was easy, basic concept we have to just put over here. So next is x is equal to t square plus t cube. Now we will do it separately. It was like v plus u. So here it is just like we are not taking minus because it is plus over here. So that is, we are just applying the same formula again, step by step, twice we are applied. Okay, this is 2t raised to power 2 minus 1 and 3t raised to power 3 minus 1 is equal to 2t minus 3t square. Okay, so the next question is x is equal to 3t square minus 2t plus 4. So here comes the constant of the first rule, that was, this is the first rule, and do not mix it with this one constant because they both rules are different. So here x will be 0. As x is equal to constant, then it will be 0. So the next thing we'll do, like just put the same thing over here and the same here. This is 3 2t 2 minus 1 minus 2 1t raised to power 1 minus 1 plus 0. So it will become 6t minus 2 minus 2 t raised to power 0 plus 0. So that will come out to be 6t minus 2. Now this is only left 2 because t raised to power 0 is equal to 1. That's why I have given you this before again. So fifth I have given you different because कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर सिर्फ x और t दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने y और x ले लिया है. तो y is equal to 3x square plus 4. Again 4 is simple constant, will be taken at 0 and the same formula that we have applied and the answer is 6x. Okay, so differentiation is done. इसके बारे में डिफरेंशिएशन के बारे में सिर्फ इतना ही है. आप ये वाले क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा. मैंने हर तरीके क्वेश्चन इसमें लगाने की कोशिश करी है. सो द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज अ टूल फॉर एडिशन. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंडेफिनाइट, एक होता है डेफिनाइट. इसमें लिमिट्स आर नॉट स्पेसिफाइड, लिमिट्स आर स्पेसिफाइड. इसमें लिमिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. लिमिट्स इज द वर्ड जो आपको इसमें हेल्प करेगा. लिमिट्स में आपको बताती हूँ क्या चीज होती है. नाउ लिमिट्स मीन देयर इज अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. मान लो हमें 0 से स्टार्ट करके 2 तक जाना है. मान लो हमें 0 से स्टार्ट करके 3 तक जाना है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग. स्टार्टिंग एंड एंडिंग, इसे कहते हैं हम लिमिट. जिसमें लिमिट डिफाइन करी होती हैं वो होता है डेफिनाइट, और जिसमें लिमिट्स नहीं डिफाइंड होती वो होता है इनडेफिनाइट. ओके, सो अब इसके रिजल्ट्स की बारी आती है. तो इसमें रिजल्ट, ये जो है ना साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है. ये आपको कहीं पर भी दिखे तो इसका मतलब आपको उस चीज़ को इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ पर इंटीग्रेट x रेज टू पावर n dx. अगर इसमें x रेज टू पावर n है तो वहाँ पर क्या चीज़ करनी होती थी हमें, n इंटू t रेज टू पावर n माइनस 1 और n, ये हमारा यहाँ पर वो चीज़ हो जाती थी. यहाँ पर हमें ये नहीं करना है. यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 अगेन. ऊपर ये पावर में है और नीचे ये नॉर्मल डिनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ है. तो इसमें क्या लेना है, यहाँ पर c होता है. ये c क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है. और ये फॉर्मूला तभी यूज होएगा जब हमें n की वैल्यू -1 ना दी हो. अगर n की वैल्यू -1 दी हुई है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते. वैसे मैक्सिमम टाइम ये दी नहीं होती, 99.9% ये चीज़ नहीं दी होती. नॉर्मल फॉर्मूला आपको लगाना होता है. तो अगली चीज़ क्या है, जी एक्स
रेज टू पावर n dx, इसमें g कांस्टेंट है, तो आप नॉर्मल चीज़ करो, किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट मत करो, g को बस इंटीग्रेशन के साइन से पीछे ले लो। यहाँ पर g को बस इंटीग्रेशन के साइन से पीछे ले लिया है और आगे तो नॉर्मल फार्मूला बन गया है ये वाला, बस इसको आप इंटीग्रेट कर दो इस वाले फार्मूला से और उसको c हो g हो किसी भी उससे मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या होएगा, हमारा थर्ड जो है इसमें है इंटीग्रेट dx। अब देखो dx में x की पावर तो 0 है क्योंकि हमें x दिया ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे x 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1 प्लस c। ये तो वही स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, बेसिक फॉर्मूला से लगे रहो और अपना आगे करते जाओ, सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जैसे वहाँ पर पीछे हमने डिफरेंशिएशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल था, वैसे ही यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है। यहाँ पर है इंटीग्रेट v + - u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dx + - इंटीग्रेशन ऑफ v dx। वहाँ पर भी हमने अलग कर लिया था, यहाँ पर भी हम अलग कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ओवर हियर। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट x² dx। इसका स्क्वायर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहेगा, दिस इज x²। और उसके बाद वो कैसे सॉल्व करेंगे हम, x⁻n dx को अगर हमें इंटीग्रेट करना होता था तो हम क्या करते थे, हमें नॉर्मल चीज़ करनी है, हमेशा नॉर्मल चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम ज़्यादा आगे जाके फॉर्मूलाज में घबराए ना। तो इसमें क्या होता है, n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। यहाँ पर भी वही चीज़ करी है इन्होंने, x⁻2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस c यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, आपको पहले भी बता दिया है। तो ये हमारा पहले का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट, इसमें 2 लिया हुआ है हमने, 2 इज द कांस्टेंट दैट वी हैव टेकन। तो हम क्या करेंगे, बस 2 को आगे ले लेंगे इंटीग्रेशन से और नॉर्मल इंटीग्रेशन आगे कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × t⁻2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस c, और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिवाइडेड बाय 3t³ प्लस 2c। बस ये चीज़ है, नॉर्मल एकदम इजी है। उसके बाद फिफ्थ का अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, 5t² + t × dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t² dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t dt इज इक्वल टू t³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस c1। अब यहाँ पे हमने c1 c2 इसलिए लिया है बिकॉज हम इसमें अलग अलग c नहीं ले सकते, दिस इज अ पार्ट ऑफ वन इंटीग्रेशन, पर हम इसे डिवाइड करके करते हैं, तो इसलिए हम इसके लिए c1 लेंगे, इसके लिए c2 लेंगे, और c1 और c2 विल बी इक्वल टू c, इसलिए यहाँ पर हमने अलग अलग लिया हुआ है। और इक्वल टू हमारा इसका आंसर जो निकल जाएगा t3³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस t² डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इस c को नहीं भूलना है कभी भी, ये c जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और फोर्थ जो है 3dt प्लस 3 इंटीग्रेशन dt। अब इसमें कैसे चीज़ करनी होती है, इसमें dt दिया हुआ है, यही चीज़ हमने पहले करके देखी थी जिसमें नॉर्मल क्वेश्चंस थे। इसमें क्या लेना है, अगर आपको dt दिया हुआ है, मान लो नॉर्मल dt इंटीग्रेशन दिया हुआ, तो इसका आंसर सीधा t हो जाएगा, क्योंकि हमें t⁻0 कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें ऐसा, तो इसलिए नॉर्मल t इसका आंसर बन जाता है। यहाँ पर भी वही करें, नॉर्मल 3t प्लस c, और हमारा आंसर आ गया है। उसके बाद एक्सरसाइज है, अगर आपको ये सारी चीज़ याद हो गई हो, आपको समझ आ गया हो, तो ये क्वेश्चंस आप अपनी एक्सरसाइज में अपने आप को देख सकते हो कि हाँ मुझे कितना आता है। वैसे मैं नीचे वाले की हिंट दे देती हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल x⁻⁻2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे आप नॉर्मल इस तरीके को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब आती है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये वाली जो थी ये सारी इनडेफिनाइट थी, क्योंकि इसमें हमें कोई भी लिमिट्स नहीं दी हुई थी, इसमें हमें लिमिट्स दी होती हैं। तो इसको कैसे करना होता है, इसके क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो जाते हैं, पर होता बहुत ईजी, और इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, फिर भी हमें अपने आप को इसके लिए तैयार रखना चाहिए। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होती है लिमिट स्पेसिफाइड। अब ये राइट कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन a/b/y dx। इसमें b जो होती है हमारी अपर लिमिट होती है और a होती है हमारी लोअर लिमिट।
अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये कैसे है, इंटीग्रेट 2/1 x रेज़ टू पावर 1 dx। तो इसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन करनी है पहले तो आपको। उसमें क्या करना होता है, x रेज़ टू पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 और फिर ब्रैकेट्स के बाद हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख देनी है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम आगे जाके क्या निकलेगा हमारा इसका आंसर, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और फिर ये हमारी अपर लिमिट, ये हमारी लोअर लिमिट। अब हमें आगे क्या चीज़ करनी होती है, ये मैटर करती है। हमें सबसे पहले अपर लिमिट लिखनी होती है, तो हम x की जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे। तो अपर लिमिट यहाँ पर 2 है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और फिर लोअर लिमिट लिखनी होती है माइनस डाल के। तो वो कैसे होएगी, x की जगह -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, द आंसर विल बी 3/2। अब तक तो आपको नॉर्मल चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसे कैसे सॉल्व करना है। आगे के 2 क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम टाइम्स आते होते हैं, ये मैंने अच्छी तरह से उठा लिए हैं। आप इनको समझ लोगे मतलब आपको डेफिनेट पूरी समझ आ गई है। दूसरी क्या है, इंटीग्रेट 2 अपर लिमिट है और 0 लोअर लिमिट 3t + 4 dt। इसमें क्या है, आपको 2 चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये 2 बार आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो इसमें कैसे करना है, इंटीग्रेशन 20 3t1 dt प्लस इंटीग्रेशन 20 4 dt। इंटीग्रेशन यहाँ तक आपकी नॉर्मल चीज़ है, बस बाहर आप इनकी लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर और अपर लिमिट दोनों की दोनों आपको लिखती जानी है। उसके बाद क्या होएगा, इस वाले पार्ट में आने के बाद हमने क्या करा है, t की जगह जो है ना अपर लिमिट पहले डाल दी। देखो t की जगह हमने पहले 2 डाल दिया, तो इट बिकम्स 3 × 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने लोअर लिमिट डाली जो कि 0 है, माइनस डाल के, माइनस हमेशा आता है पॉजिटिव नहीं आएगा, हमेशा माइनस का ही साइन लगता है। तो इसमें क्या आएगा, -0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसके बाद 4 में, क्योंकि इसके आगे कुछ था ही नहीं, इसकी कोई पावर्स वगैरह कुछ डिनोमिनेटर नहीं था, इसलिए इसको नॉर्मल लिख देंगे 4 × 2 - 1 और ये हमारा नॉर्मल आंसर आ गया है। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, ऐसे चुटकियों में। तो आपको क्या करना है, इसको पहले खुद ट्राई करो और उसके बाद फिर इससे देख के समझो, क्योंकि अगर ये समझ गया एक बार आपको तो फिर आप आगे ट्राई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके हमारे पास इतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो आप इसको करके देखो पहले एक बार, पॉज करके वीडियो, ठीक है। अब आपको हो गया होगा तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसमें क्या है, हमने लोअर लिमिट -1 ली हुई है, तो इसमें कोई भी चीज़ घबराने की नहीं है। यहाँ तक आपका नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल इंटीग्रेशन चल रही है। यहाँ पर आपको क्या करना होना है, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या होता है कि देखो यहाँ पर तो आपका हो गया t -1 डिवाइडेड बाय -1, पावर हो गई हमारी 0 और -1 का क्या हो जाता है, बहुत इजी चीज़ है, ये आपकी उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पर t रेज़ टू पावर -1 था, तो यहाँ पर t उल्टा हो गया, तो वहाँ पर +1 हो गया। यहाँ पर मैंने -1 नहीं लिखा है, -1 का कुछ नहीं हुआ है। ये हमारी लिमिट्स है कि हमें डालनी ही पड़ेगी, हम सिर्फ इस वाले -1 की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पर आने के बाद पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमने इसको उल्टा कर दिया है। तो उसके बाद दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हम अपर लिमिट डालते हैं, फिर लोअर लिमिट डालते हैं। यहाँ पर t नीचे है तो इसलिए हमने अपर लिमिट नीचे डाल ली है, तो -1/2 -1/-1 ये वाली चीज़ हो गई और उसके बाद फिर आंसर आपका ये आ गया। So this is all about integration and differentiation. Hope you have all understood it, and if you have understood, don't forget to like, subscribe.